मेडिसिन ले लो। उन्होंने इसे पैरासीटामोल दी है, पेन किलर, और एवरी 6 आवर्स इसे खानी है ताकि पेन ना फील हो। 3 बज गया हमें। The next day. हे एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, लेकिन अंश ठीक नहीं है। अंश के स्कूल में ना अंश का पैर फिसल गया और उसकी आर्म ना ब्रेक हो गया। इसे प्लास्टर लगा, ये देखिए अभी सो रहा है। ये कल की बात है जब हम घर पे अपना काम वगैरह कर रहे थे। मम्मी अपनी पैकिंग करने वाले थे जाने के लिए, और हमें स्कूल से फ़ोन आ गया कि अंश का पाँव फिसल गया और एम्बुलेंस को कॉल किया, वो आ रही है, आप भी आ जाओ जल्दी से। फिर मैं और मेरा भाई है जो, हम दोनों गए फटाफट। वो पहले ही चला गया था और इसके कल एग्ज़ाम भी थे ना, तो वो पहले ही इसे लेने के लिए गया हुआ था। तो मुझे जब कॉल आई तब वो निकल चुका था। फिर मैंने टीचर को बोला वो तो निकल चुका, ऑन द वे है ना। तो फिर टीचर को मैंने कहा अभी जब मेरा भाई आ जाएगा और मेरी बात करवाना, मैं उससे पूछूंगी एग्जैक्टली हुआ क्या है। उन्हें ना एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था वो, या फिर वो करना नहीं चाह रहे थे कि क्या हुआ, कि मैं डर ना जाऊँ, घर पे हूँ, ये हुआ ऐसे है ना। तो फिर जब उनकी कॉल आई तो मैंने कहा, फिर मैंने आपको दोबारा से उन्हें कॉल किया। मैंने कहा मेरी ना मेरे भाई से बात करवाओ, मैं उससे पूछती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इसे। तो फिर वो कहती कि वो जो आपका ब्रदर है वो आपको लेने के लिए आ रहा है घर पे। मैं और ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा मुझे कब घबराहट होने लगी ना। अभी मैं आपको बता रही हूँ ना तो मुझे घबराहट स्टार्ट हो गई। मुझे ना घबराहट होने लगी है फिर से, जब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको कल क्या हुआ। तो फिर जब मेरा भाई मुझे लेने के लिए घर आया तो फटाफट से हम दोबारा स्कूल गए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो फर्स्ट फ्लोर पे था अंश। मैंने जब उसे देखा मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये नीचे लेटाया हुआ उन्होंने फ्लोर के ऊपर Sino lalaki? Ako po ang nanay niya. Anong pangalan po nun? Sa kanya po. Apo. Kasi minsan hindi iba hindi nag-a-accept eh. Sa ba may orto ba kayong alam sa Bulacan? Aman, alam mo ba? Eh kung doon may x-ray din po. May orto po na spec. Kung ano po kasi, kung konti malik yung kaya po naman simentohan lang, pwede naman din po siguro. Wala dyan. Sa tala po tayo. Sa hospital na, ano yung public hospital na. Sa tala po ang semento. Sa Tala, meron. Orto. Doon na lang daw, Pag diretso emergency po, natin. ikikita. Okay lang. Diretso na lang sa tala. Tala yun. Punta sa Tala. Kasi may orto din doon May sa orto tala. po doon. Meron din sa tala. Sa Tala may orto. Oo. Sige po, doon lang. Daddy, dyan Kasi po may dinadala po kami ng Tala na Bernardino. lang kayo diretso. Mas mabilis. Sa tala rin po nire-repair. Opo. Tala na lang. May orto din doon sa tala. Pag emergency po, ikikita naman po nila agad yan. Ano sir? Mauna na ako. Tuloy na ako. Thank you kuya ha. Oo. Pag diniretso ko, dahan ha. Hindi, tinawagan ko si Gary dito. Sir, nabrik po si Jam. Sa'yo mo dito banda ha. Ano po yan si Jam? Wala dito. Tala na lang kayo. Nabali po ba yung ano niya, sir? Possible po. Deformed eh. Ah. Dislocation po siguro. Hindi yan dislocation. Dito yan. Ah. Kasi kung ano yan, pwede niya iyan. Kung nalamog lang, namagana oh. कहते बांह टेढ़ी हुई है, कर्व हो गई है, कहते थोड़े डिस्कोलेट हुई है। Hindi, ganun talaga pag ano na. Ang maganda sana kung kaya. Insert mo. Pag hindi kaya sa simento, doon talaga. Doon lang po sa tala kung pwede po doon. Okay lang yan po, okay lang yan. Kunin. Tiis mo lang konti. Kunin. Talagang may sensation yan kuya ha. May sensation talaga yan ha. Ma-feel mo talaga yung konting pain. Pero tiis lang ha. Inhale, exhale ka lang. Yun, mayroon na pala agad si kuya oh. Kaya nga po tinatanong namin kung anong klase ng emergency. Lalo kung mga Sabay dito. nadulas. Higa ka kuya, higa. Hindi, wag mo na siya pag... Higa kuya, higa. Ipasok mo na lang. Hindi natin may ano na. Sit down ako. Pasok yan. Basta yangat mo yan. Okay yan. Okay na. Mga naman si Polar.
Malakas Ipat ka eh. eh, malakas ka. Okay lang yan. Ingang malalim. Tiis lang konti. Ganun ka na. Yan. Ah, very good. Kuya ni po ito, kuya ni. Hindi. Kusnyunda. Tali natin para hindi siya Para hindi siya magalaw. Pangkikit yaman. Saan ko yung ano? Ay, kitay pa yan nung namin. Kuya ni po ito. Tiis lang. क्यों है चक्कर आंदे अंश relax lang. Oh, isa na lang ang tali. बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है जब आप अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखते हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि इसकी जो आम है ना फ्लोर के ऊपर जाकर लगी तो उसकी वजह से इसकी आम है जो ब्रेक हो गई थी तो बहुत ज़्यादा रो रहा था अंश। मैंने इसकी वीडियोस वगैरह बनाई कि अगर बाई चांस डॉक्टर पूछ लेते हैं कि कौन सी पोजीशन में लेटा हुआ था, कैसे गिरा, क्या हुआ, है ना, तो दिखाना पड़ सकता है। और उन्होंने एम्बुलेंस को भी बुलाया हुआ था। समटाइम्स आपकी गलती नहीं होती है ज़्यादा, तो एम्बुलेंस वाले होते हैं जो, है ना, जो। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर के साथ स्ट्रेचर के ऊपर अंश को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी इसकी आर्म की जो मूवमेंट है वो होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर फ्रैक्चर है या फिर जो हम बोलते हैं कि डिसलोकेट हुई है इसकी बोन। तो इसीलिए वो जो एम्बुलेंस वाले हैं उन्होंने बोला कि इसे हमें, इसकी आर्म को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेचर है जो प्लेस किया अंडर अंश और फिर उसे जोड़ते हुए स्ट्रेचर पूरा कंप्लीट करके लेके गए। यहाँ पर अंश बहुत ज़्यादा पेन में था, मुझे इतना ज़्यादा तरस आ रहा था अंश के ऊपर। हम इस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो करना होता है वो एम्बुलेंस वालों ने सारा हैंडल करना होता है। और फिर उन्होंने स्ट्रेचर को जोड़कर अंश के सिर के नीचे पिलो रखवाया, जो पिलो यहाँ पर साइड पे पड़ा हुआ था पहले से ही स्कूल वालों ने दिया था क्लिनिक से। और फिर 4-5 उन्होंने बोला जितने भी लड़के हैं, है ना, जो उठा सकते हैं क्योंकि एम्बुलेंस में सिर्फ 3 जने ही आए थे। तो फिर मेरे भाई ने और 2 स्कूल के जो गार्ड हैं वहाँ पे उन्होंने उन्हें अंश को उठाकर एम्बुलेंस में लटाया अच्छे से। यहाँ पर भी अंश बहुत ज़्यादा रो रहा था, सारा रास्ते में ना अंश रोता गया जब तक हम हॉस्पिटल में पहुँचे नहीं। तो हॉस्पिटल स्कूल से तकरीबन 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स अवे था। तो एम्बुलेंस तो फिर पता ही है आपको कितनी ज़्यादा तेज़ आती है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस में लड़की आई थी ना वो बैग रख रही है अंश की आर्म के नीचे क्योंकि उसे फिर सपोर्ट मिल जाएगी ना। वो आर्म अपनी मूव नहीं कर पा रहा था, अपने पेट के ऊपर नहीं रख पा रहा था और साइड में कोई जगह नहीं थी रखने के लिए। तो फिर उन्होंने उसकी आर्म, एक बैग था जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स वगैरह या फिर बैंडेजेस वगैरह पड़ी होती होंगी, है ना, वो रखवाया अंश पे। और फिर हम बैठकर निकल गए अंश को हॉस्पिटल लेकर। पापा को मैंने बोल दिया कि आप घर जाओ क्योंकि उनकी फ़्लाइट भी थी और भाई मेरे साथ अपनी मोटर बाइक पे आया था। वो आते हैं लेने के लिए, वो ऐसे जल्दी जल्दी में डालकर आपको ले जाते हैं। तो समटाइम्स उससे भी आपकी जो आर्म की पोजीशन वगैरह है वो ख़राब हो सकती है। तो इसी वजह से, इसी मोटिव से मैंने वो वाली वीडियोज़ की शूट की थी ताकि अगर डॉक्टर को कुछ दिखाना हो या फिर बताना हो कि कैसे उठाया, क्या किया, तो मेरे पास वीडियो हो अंश की उन्हें शो करने के लिए। तो इसीलिए मैं वो वाली जो वीडियोज़ है ना वो ऐड कर दूँगी इस वाले व्लॉग में। फिर आप लोग भी देख लेना कितना ज़्यादा बुरा हाल था इसका अंश का कल। पापा और भाई पीछे पीछे आ रहे हैं बाइक पे। मेरी तो ना सांस ही फूल रही है बताते हुए भी। अब वो सो रहा है, अब ठीक है। और हम दोपहर को गए थे और रात के हमें 2 बज गए इसका जो प्लास्टर लगते लगते। उन्होंने एक्सरे किए, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया अंश को। यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, ट्रीटमेंट दिया सारा। बहुत ज़्यादा रो रहा था अंश, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी सी आर्म को जैसे उसकी पोजीशन में दोबारा ला दिया तो फिर इसका थोड़ा सा मतलब जो फिर इसकी जो पेन थी ना वो उसे रिलीफ मिला थोड़ा सा। और
जब तक उन्होंने एक्सरे वगैरह कर रहे थे तब तक ये बहुत रो रहा था। फिर भाई ने उन्हें बोला जाकर डॉक्टर को कि आप ना इसे कोई इंजेक्शन या फिर मेडिसिन दे दे पेन किलर। यहाँ पर अंश एक्सरे की वेट करते करते सो गया था और अचानक से इसे पेन हुई तो फिर ये रोने लगा और उन्होंने इंजेक्शन दिया। फिर अंश ने स्कूल में कुछ नहीं खाया हुआ था इसलिए इसे भूख लग गई, तो फिर मैंने अंश के लिए सैंडविच और ठंडे पानी की बोतल ली यहाँ से कैंटीन से। इसकी पेन रुक जाए क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है एक्सरे होने में, रिज़ल्ट आने में, फिर वो देखते हैं, सारा स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। अब यहाँ पर अंश के जो फ्रैक्चर है ना डॉक्टर ने देख लिया था एक्सरे के बाद, और इसे ना प्लास्टर है जो वो लगा दिया था। और प्लास्टर लगवाने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि आप एक्सरे करवा कर लाओ दोबारा से, पोजीशन देखने की ठीक हो गई है कि नहीं। इट्स नॉट दैट ईजी कि हम सोचते हैं हाँ जाएंगे तो डॉक्टर फटाफट से ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिलीपींस में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर है कि आपको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी वो दे देते हैं। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, मेडिसिन वगैरह, मेडिकल कंडीशन कुछ भी हो, आपको जल्दी से जल्दी उसकी मेडिसिन मिल जाती है। अनलेस लाइक USA, कनाडा या फिर UK में अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा होता है इमरजेंसी, जल्दी मेडिकेशन नहीं मिलती है वहाँ पर, है ना। तो ये स्मोक के नीचे मेरे पाँव पे देखो ये क्या कर रही है, काटी जा रही है, बात ही नहीं करने दे रही। तो हाँ बस अब वो सो रहा है अंश मेडिसिन अपनी लेकर। उन्होंने अभी छोटे वाला जो प्लास्टर होता है ना वो किया है, 1 वीक बाद दोबारा बुलाया, फिर अच्छे से दोबारा इसे प्लास्टर करेंगे। और मुझे लगता है 2-3 महीने के लिए इसे रखना पड़ेगा। वो बोल रहे थे कि अभी बच्चा है ना इसीलिए जल्दी से जो बोन ब्रेक हुई है वो जुड़ सकती है, इसलिए सर्जरी वगैरह की नीड नहीं है। शुक्र है बाबा जी का कि उन्होंने इतना ज़्यादा मुसीबत में नहीं डाला। इट्स ए माइनर से आप ब्रेक इन हिज है ना आर्म, तो वो ठीक हो जाएगा जल्दी। अब इसे रेस्ट करनी पड़ेगी जितनी भी हो सकेगी। मम्मी पापा भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट भी थी साउथ कोरिया के लिए, वो साउथ कोरिया गए हैं घूमने के लिए, उनका मन बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने कहा अभी आपकी अब टिकट हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, मम्मी इतना ज़्यादा रो रहे थे। मैंने कहा आप लोग जाओ, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे पीछे से। तो फिर वो चले गए थे। हेलो खा लूँगी, मन नहीं भरन दी लोड़ कोई नहीं, ठीक है। कितने ना लेना ध्यान रखियो उधर। हाँ चलो ध्यान नाल, कोई फिक्र नहीं करना, हम ध्यान से रहेंगे सब। ध्यान रखियो मेरे पुत्र। हाँ ओके क्या मैं नानी मम्मा को बाहर तक। ओके ओके बाय। और देखते हैं कितनी जल्दी अंश रिकवर करते हैं अपने आप। अब मम्मी नहीं है घर पे तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर मैंने अंश के लिए चिकन पाव का सूप बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन होती है और जो बोन्स वगैरह जल्दी जुड़ जाती हैं, इससे जल्दी रिकवरी हो जाती है। यहाँ पर राइस बन रही है और यहाँ पर हम सब के लिए सब्ज़ी बन रही है चिली पोट की। किचन वगैरह साफ कर दिया। ये देखो कैसे सो रही है, अंश भी अभी सो रहा है। आज तो मेरा डे ऑफ था इसीलिए सारा कुछ मैं देख रही हूँ, कल फिर भाई देखेगा सारा कुछ। भाई उठ जाओ ध्यान से अंशी। उठो
सूप बनाया मैंने आपके लिए। उठ जाओ मेरा पुत्तू, उठ जाओ सोने। हाथ दुखदा, थोड़ा सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। यहाँ पर अंश पूरा आपने प्रेशर डाला हुआ है आप। तो अभी तो आज मैंने लीव ली थी जॉब से, इसीलिए मैंने सारा कुछ कर लिया। कल फिर भाई देखेगा, वो रोटी सब्जी का सारा कुछ वही करेगा जब मैं जॉब पे जाऊंगी। तो देखते हैं कैसे ये 8-10 दिन निकलेंगे मम्मी के बिना।